Pakistan, the fifth most populous country of the world, is a multi ethnic country located in the South Asian region. It has historically and culturally been closely associated with its neighbors Iran, Afghanistan, and India. The geography of Pakistan is diverse, with the Thar Desert in the east, the Karakoram, the Hindu Kush, and the Himalayan mountain ranges in the north, and the coast of the Arabian Sea in the south. The total coastline of Pakistan, which is enriched with marine life, extends to over 1,000 kilometers, with approximately 250 kilometers running along the province of Sindh and 800 kilometers along Balochistan. The country continues to be ranked as being one of the most vulnerable when it comes to climate change. In recent times, the entire South Asian region, including Pakistan, has increasingly faced extreme weather events, particularly those caused by heavy rainfall during the monsoon season and the resulting flooding. These floods not only cause the loss of life but also have huge economic impact on the countries in the region, with losses estimated at billions of dollars each year. These climatical changes have been creating new environmental challenges every day for those countries to cope up with. And one of the communities that has been the most at risk due to such environmental changes is that of the fishermen. Over time, the fishing industry in Pakistan and those whose livelihood is directly connected with it, particularly the fishermen, has become increasingly more vulnerable to the climatical changes and environmental pollutions. Karachi, the largest city of Pakistan and one of the most vibrant, diverse, and generous cities of the country, contributes significantly to the country's prosperity and provides opportunities to millions to make a livelihood. Similar to other areas in the South Asian region, Karachi has also been severely affected by climatical and environment changes in the form of intense monsoon rains and heavy urban floods. Ibrahim Hedri is one of the neighborhoods which is part of the Bin Qasim town in Karachi. The area holds a unique significance due to its ethnic diversity. The most distinguishing feature of this area is its location adjacent to the Korangi Creek. The area is surrounded by the creek, and the Korangi Creek Road connects the neighborhood to the main city. The area has a jetty extending to the Korangi Creek, which is of crucial importance to the anglers in the area. The fish caught from the area is processed and then sent to the market in the city for sale. मछली लियो मछली वाला आ गया For the past 3 years, I have been working closely with the fishermen community. Observing their lifestyle, I used to get inspired by how hard they work on a daily basis to make a living. सब तैयार है खाली थोड़ा वो सामान नहीं दिया वो बिरयानी का कहा था ना उसने तो वो नहीं बनाई तो बोला यहाँ से ले लेंगे
वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अभी हम तैयार हैं जाने के लिए। जी जी 5-10 मिनट लगेंगे थोड़ा सही। सेटिंग करने में। तालीम के लिहाज से तो मेरी मिडिल क्लास हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सोशल वर्कर होते थे, वहाँ मैं आता जाता था तंजीमों में, तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए। तो मैं एक अनपढ़ बंदा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं ये कैमरा जो आया था, तो वो शादियों में फ़िल्म बनाते थे, मूवी वगैरह बनाते थे, तो मैं उनके पीछे लग गया कि मुझे भी कैमरा चलाना है। तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि शादियों की फ़िल्में तो हम कर रहे हैं, और इस माहौल के ऊपर भी हम कुछ फ़िल्में बना के हमारे मसले जो हैं वो दिखा सकें लोगों को। वो पानी वगैरह ना हिल रही है। हमारे ये जो किनारे होते थे इतने साफ़ होते थे कि हम यहाँ नहाने के लिए आते थे, तो जब पानी का इंतज़ार करते थे कि पानी चढ़ेगा, तब तक हम यहाँ खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे यहाँ पे किनारों पे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ जेटियाँ बनना शुरू हो गई, तो ये गट्टर सारे समुद्र में गिरना शुरू हो गए, और अब पूरी कराची का जो कचरा आके वो भी यहाँ हमारे समुद्र में आके फेंकते हैं। गप्पे करे हलवा या उनमें बटाने में हलवा नहीं होता तो वटी लेना ही भाई खाजे लौटे वटी लेना। हाँ ठीक है। ये बताएं कि जो यहाँ पे जो है ना इब्राहिम हैचरी में क्लाइमेट चेंज के हवाले से कितनी अवेयरनेस है यहाँ, स्पेशली फिशरमैन कम्युनिटी को ना। देखिए हमारे हम जो माहीगीर हैं ना, वो हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो समंदर जो है वो हमारी रोज़ी का प्याला है। हमें बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हमारी एक खाने की प्लेट में किसी ने जो है वो गंद डाल दिया। तो ये बात नहीं है कि हमारे माहीगीरों को इसके बारे में ख़बर नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मौसमों की तब्दीलियाँ जो हो रही हैं, जैसे अभी हमारे माहीगीर ये समझते हैं कि ये जून जुलाई जो है समंदर खूब अपनी रफ़ पोजीशन पर होता है, और इस दौरान जो है वो हमें हमेशा से माहीगीर जो है अपनी माहीगीरी बंद कर दिया करते थे बिल्कुल। लेकिन अभी 15 अगस्त तो क्या सितंबर गुजर जाता है, लेकिन मौसमों का कुछ पता नहीं चलता। जिस जिस तरह से तब्दीलियाँ आ रही हैं, समंदर का लेवल जो है वो बुलंद हो रहा है, और ये तूफ़ान जो बनते रहते हैं, उसकी वजह से जो समंदर में एक वरम सा आ जाता है, हमारी माहीगीरी ज़बान में कहते हैं। इससे हमारा रोज़गार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। ना सिर्फ रोज़गार मुतासर हो रहा है, बल्कि हमारा माहौल, हमारा समंदर जो है उस पर बहुत ज़्यादा असरात हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम अभी तक तो मैंने नहीं देखा। हम भी रड़ियाँ कर कर के तंजीम के हवाले से थक गए। बहुत सारे लोगों ने की, बड़ी बड़ी होटलों में सेमिनार किए, ठीक है। तो खुदारा ये जितनी फैक्ट्रियों का फुजला इधर आ रहा है जी, केमिकल शुदा पानी समुद्र में तुम फेंक रहे हो जी, इसको ट्रीट प्लांट लगाओ, इसको फिल्टर करके पानी के अंदर छोड़ो। दुनिया के अंदर ऐसा है, जी, जी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में समझो कोई नहीं सुनता। हाँ, सही बात। अच्छा, भैंस कॉलोनी का जितना भी फुजला है ना गंद भैंसों का, वो सारा समुद्र में गिर रहा है, सारे समंदर में सारा समुद्र में आ रहा है। हमारे शहर के बरसाती 3 बड़े कराची के नाले हैं। जो बरसात का पानी वो इन नदियों के ज़रिए डायरेक्ट जाके समुद्र में गिरती थी, यानी कि मलीर नदी, लियारी नदी और कराची के छेड़े और बलूचिस्तान के सरहद पे हब नदी। अब हब नदी के साइड में भी बहुत बढ़िया वो फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं जिनमें केमिकल जो है यूज़ होता है, और उस तरह का जो सेवरेज है वो बगैर ट्रीट के जो है डायरेक्ट जाकर समुद्र में गिरता है। अब वो नदियाँ नहीं, अब वो गटर के नाले हैं।
जून जुलाई में जब बंद थियो वञे न दरिया तेज़ थियो वञे पर पंहिंजा मछियारा पोइ वेन नथा वञनि था ॿाहिरि त उनमें कहिड़ा ख़तरा उन मतिलबु ख़तरा इहे थींदा मतिलबु हितां निकिरनि था पोइ मतिलबु ख़राबु ॿियो टियो आहे दरिया आहे त पोइ उनमें मिसाल अगरि ख़राबु दरिया उथे थो पोइ मुंहुं सॼे खे ॾियणो पए थो की पोइ उते हिशिम त जलणी पई थी न उते मिसाल अगरि पुई ते पैर विझने ॿुॾी वेंदे त पोइ पंहिंजी मुड़सी करे पंहिंजी मुड़सीअ ते कारोबार होड़ी आहे उहो त कंहिं कंधीअ ते पाण खे पुॼाइणी पवंदी आयो वाह मिसाल ॻाल्हि त तोखे वाह ते पोइ मुक़ाबिलो करिणो आहे उते पुई ते पैर विझने ॿुॾी पवंदे ते आंखे डपु थिए थो पर ना कीअं लेरीअ में डपु थिए थो पर मतिलबु हिमथ जलणी आहे अलाह जो नालो वठी मतिलबु मान ते क़दम खणंदे रहे कहिड़ो बि दरिया हो तोखे आसान आहे हलियो वेंदे अभी कुछ दिनों पहले एक वाक़या हुआ था जिसमें बंदर आइलैंड से जो है ना फिशरमैन कम्युनिटी को हटा रहे थे और सारे मैंग्रोव जो है ना काट रहे थे। सही है, तो आप उस बारे में बताएं कि फिशरमैन कम्युनिटीज़ को उस वजह से क्या तकलीफ़ें क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है ना फेस करनी पड़ी। देखें ये डिंगी और बुंडाल जो ये जुड़वा जो जजीरे हैं ये छोटे माहीगीरों की फ़िशिंग ग्राउंड है। यहाँ से छोटे माहीगीर जो है वो फ़िशिंग करते हैं और यहाँ पे जो मैंग्रोव्स हैं उन मैंग्रोव्स को बहुत ज़्यादा ख़तरात है क्योंकि यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होगी आबादी यहाँ पे जब बढ़ेगी तो इन मैंग्रोव्स को काट दिया जाएगा। तो एक तो जो मछलियों की और झींगों की और खेकड़ों की जो नर्सकाएँ हैं वो तबाह होंगी, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो मसला जो माहीगीरों को आ रहा है वो है कुरंगी क्रीक से उनका आना और जाना, क्योंकि जब इन जजीरों पे कंस्ट्रक्शन होगी तो कुरंगी क्रीक को पुल के ज़रिए इन जजीरों से जोड़ा जाएगा। फिर छोटे माहीगीर हैं जो वाहिद रास्ता ये इनके दो रास्ते हैं, एक फिटी क्रीक की तरफ जो कॉलोनी से गुज़रता है और दूसरा जो है डायरेक्ट ओपन सी में जाता है कुरंगी क्रीक से। तो ये दोनों रास्ते जो हैं उनके आने जाने के बंद हो जाएंगे। फिर इनको जो है कडेरा क्रीक से घूम के फिर फिटी क्रीक से जाना पड़ेगा, तो 6 घंटे का ये सफ़र होगा। अब ये सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, अब 6 घंटे का जाने का और 6 घंटे आने का सफ़र जो होगा तो फिर वो जिसको हम हेला कहते हैं यानी डेली आने जाने वाले वो कैसे वहाँ से फ़िशिंग कर सकेंगे। तो ये एक माहीगीरों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है जो माजी में भी हुआ है, चाहे वो कासम पोर्ट हो चाहे वो मेरीना क्लब हो, जो माहीगीरों को वहाँ से गुज़रने की इजाज़त नहीं है। तो ये सिलसिला जहाँ पे हुआ तो इब्राहिम हैतरी रेडी के जो माहीगीर हैं हज़ारों की तादाद में छोटी कश्तियों में जाते हैं, उनका रोज़गार जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब मीठे पानी का दबाव था पाकिस्तान की तरफ तो डेल्टा थे, ठीक है जी तो ये ज़मीन बहुत बड़ी थी सही और मैंग्रोव्स भी की कटाई भी नहीं होती थी, तो मैंग्रोव्स भी बड़ी मिकदार में थे। तो उस ज़माने में इधर 100-150 घर थे, इतनी बड़ी आबादी थी। अभी ये चंद 2-3-4-5 घर रह गए हैं क्योंकि ज़मीन पूरी पानी खा रहा है, इसको टिम्बर की कटाई हो रही है। तो यहाँ अब लोग यहाँ से माइग्रेट होकर सारे यहाँ से चले गए।
क्लाइमेट चेंज के असरात को हम लोग कम कर सकते हैं अगर ये दरिया सिंध का जो पानी है ये डायरेक्ट समंदर में आकर गिरे, क्योंकि हमारे पास जो है एक यही कॉन्सेप्ट है कि ये जो मीठा पानी है ये समंदर में जाता है तो ये ज़ाया होता है। ये ज़ाया नहीं होता है, ये हमारे समंदर की माहौलियात की ज़रूरत है, ये हमारे तिमर की ज़रूरत है, हमारे मछलियों की ज़रूरत है, और इससे समंदर की तेज़ाबियत जो है वो में कमी होती है। ये खारे पानी को जो है ये धकेल के पीछे ले जाता है, मीठा पानी ज़मीन बनाता जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब जैसे ये समंदर में ये मीठा पानी कम हुआ है तो इसके असरात मैंग्रोव्स पर भी बहुत ज़्यादा हुए। अब वो तादाद मतलब मैंग्रोव्स की नहीं रही, क्योंकि जो मीठा पानी है वो उन तक नहीं पहुंचता ज़्यादा। और दूसरा ये कि समंदर की तेज़ाबियत जो है वो उसमें इजाफ़ा हुआ है। समंदर की तेज़ाबियत में इजाफ़ा होगा तो हमारी मछलियाँ जो है वो ऑटोमेटिकली किनारों से दूर जो है वो डीप सी में चली जाएंगी, और जो शिकार है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। ज़ाहिर है इसके सारे असरात जो है वो इनडायरेक्ट मतलब हमारी औरतों पर ही जाते हैं, क्योंकि हमारी बच्चों की तालीम और घर का खर्च सारा सिस्टम जो है वो हमारी औरतें चलाती हैं। तो इन सारे मसलों की वजह से जो है हमारी औरतें मुतासर हैं, और तकरीबन ये पाकिस्तान के जो तकरीबन 40 लाख के करीब जो माहीगीर हैं ये सफ़र कर रहे हैं। मतलब हेर मुंहिंजा हे छोकिरा विया दरिया ते, पोइ मतिलबु आउं हिते आउं कोन वञी सघियुसि। इन होड़ी खई नंढी, इन नंढी होड़ी खई पुठि मथां अची लथो तूफ़ान एॾो अची लथो, तंहिंमें बरसाति, पोइ एॾो मतिलबु तूफ़ान हुयो जंहिंमें मूं हिते दिलि हारे विधी कि आउं डप मां पोइ मूं पे यको रोयोसि, राल पे कयां, सम्झे। तव्हांजे हिन जे ॻोल्हा करे करे ॿ होड़ियूं मूं हितां ॿियूं मोकिलियूं, सिर्फ़ु ॻोल्हा करे करे पोइ भॼी आया। अञा मूंखे डपु वधी वियो, पोइ एतिरो में डपु थियो तव्हांजे हिन खे नारे आउं वियुसि पंहिंजे ॾके ते उते सॼी फैमिली मूं सां गॾु हुई। पोइ उते असीं वेठा हुआसीं, इन जो ॻोल्हा करे करे सिॼु अची लथो, पोइ होड़ियूं कोन निकितियूं। तव्हांजे तूफ़ान अची मतिलबु पंहिंजी जॻह ते तूफ़ान सफ़ा खुटी वियो। पोइ मूं यको राड़ बि कयमि, हिन खे मूं चयुमि विञो, मुंहिंजा छोकिरा ॿुॾी विया। वरी हे ॿोड़ियूं रशीद ऐं ॿुढो हितां मूं मोकिले छॾियमि, होड़ियूं हितां भरे 4-5 होड़ा जेका हुयासीं पंहिंजा इन से रवान करे छॾियमि। पोइ राति जो मतिलबु 9-10 लॻे हो भॼी आया, हे कोन आया। पोइ एतिरो मूंखे डपु थियो, पोइ वरी हितां ॾके ते वेंदो त राति जो 10 लॻे वियोसि। पोइ हिन खे वञी ॾिठोमि त हे आया पे तूफ़ान पंहिंजी जॻह ते वञी खुटी वियो। पोइ मूंखे अची डपु लथो, पोइ इन खे आटा विझी गॾिजी पोइ वारे घर ॾिनी। समंदर में जब भी तूफ़ान आते हैं तो उनका ज़ोर जो है ना वो इन जंगलात में टूट जाता है। और दूसरा जो कश्तियाँ हमारी बाहर होती हैं फ़िशिंग के लिए जाती हैं, अगर कोई तूफ़ान या तेज़ हवा आ जाए तो वो भी कोशिश करती हैं आके इन मैंग्रोव्स के जंगलात के अंदर आके रुक जाएं, क्योंकि वहाँ पर तेज़ हवा नहीं होती। तो वहाँ पर तब तक रुकते हैं जब तक ये हवा या तूफ़ान ख़त्म हो जाए, फिर वो वहाँ से निकलते हैं। ये हमारे लिए सेफ़ गार्ड की हैसियत रखते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि अब तक जो हमारे पूरे कराची को जो सुनामियों और तूफ़ानों से जो बचाया है वो किसी औलिया वली नहीं, हमारे औलिया वली यही हैं, तमर के जंगलात। गैस महंगी होने की वजह से जो फैक्ट्रीज़ हैं जो बॉयलर इस्तेमाल करते हैं, बॉयलर इस्तेमाल करने के लिए आग जलानी पड़ती है, वो अभी इन तिम्बर की लकड़ियों से ही जो है वो बॉयलर गर्म करते हैं। तो एक माफिया ये भी है, जो लोग चोरी छुपे वहाँ से कश्तियाँ भर के लकड़ियों के लाते हैं, पर चोरी छुपे जो हैं उतारते हैं, और उस लकड़ियों में हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, ख़ासकर मैं पुलिस का नाम लूँगा, तो देख रहे हैं कि भाई ये जा रहा है। या मैंग्रोव्स की जो लकड़े हैं वो गदागड़ियाँ भर के वो जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई बोलेगा नहीं। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, अगर मैं 1965 से बाद की अगर मैं 70 तक बात करूं, तो बेले खाते का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। मुझे याद है कि उनके पास 2-2 इंजन वाली बहुत अच्छी कश्तियाँ थी, इब्राहिम हैदरी में खड़ी होती थी। वो कश्तियाँ इन मैंग्रोव्स को जो हैं वो
देखभाल उनकी करती थी, उनका बाकायदे डिपार्ट 2 कश्तियाँ यहाँ उनकी खड़ी रहती थी। अब उस डिपार्टमेंट का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता। ये जो सारे क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, ये हमारे लोग अभी तक मतलब कम्युनिटी में ये समझा जाता है कि हाँ शायद हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हो गए या अल्लाह से हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है, तो इसी वजह से जो है ये असरात हैं। लेकिन हम कम्युनिटी को अपने बताते रहते हैं, उनको प्रोग्राम में जो है वो शामिल करते रहते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो है असरात ऐसे ही नहीं है, क्योंकि ये ना अल्लाह से आप लोगों से नाराज़ है और ना ही जो है इस आपके गुनाहों की वजह से या ऐसा कुछ है। ये कि जब से कुदरत का निज़ाम है, उसमें जब से इंसानों की मदाखलत शुरू हुई है, तब से ये जो है ज़ाहिर कुदरत के निज़ाम में मदाखलत करेंगे तो नुकसान तो होगा। ये चीज़ें हैं, इनको जो है सिलेबस है उसमें शामिल होना चाहिए और इसको जो है बच्चों को बाकायदा पढ़ाना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके असरात जो हैं उससे हम क्या नुकसानात हो रहे हैं हमारे रोज़गार पर, हमारे माहौल पर उसके क्या नुकसानात हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बच्चों को जो है वो बताना चाहिए।